Very good morning, Professor Tankeshwar Kumarji, Honorable Science and Technology, Hisar, Haryana, and Professor Kamal Chopra, Chairman, Print Olympiad 4th Edition, respected judges for today's contest, Sri B.D. Mendirata ji, Sri A.K. Sinha ji, Sri Anubhav Shiksha ji, Sri Ramesh Pawar ji, Office Bearers of AIFMP, New Delhi, Offset Printer Association, Ludhiana, other various printing institutions, printers from different parts of country, and dear students. Very good morning to you and welcome to the North Zone Print Olympiad 2020 inaugural session, the biggest printing talent hunt in India. I am expressing my sincere thanks and gratitude to each one of you for sparing your valuable time and attending this prestigious talent hunt program for the northern region. I am highly thankful to Kamalji for initiating the unique idea of holding competition among the printing and packaging students in India way back in 2014. I am also equally happy that our department was assigned to host the first two editions of Print Olympiad at our university campus. At present, Print Olympiad is a very familiar brand among the printing fraternity in India, and all the credit goes to Kamalji. The fourth edition was planned under the guidance of Professor Amrit Raj, head of the Department of Media Technology, in March 2020. But due to COVID-19, the program was postponed. In the meantime, Kamalji came with an unique idea of holding zonal level printing Olympiad contest prior to the grand finale to be held at MIT through online mode. We are equally proud to host the North Zone Print Olympiad organized by Offset Printers Association Ludhiana under the aegis of All India Federation of Master Printers New Delhi. Through various levels of online test, 5 top students will be selected from the North Zone. I am happy to inform that students from various printing and packaging institutes located in Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, Haryana, Haryana are actively taking part in this at a national level competed on a suitable time. Group list was started on Haryana State Legislative Act at Hisar to impart education on the frontiers of technology, pharmacy, environmental science, non-conventional energy sources, mass media, management studies. The university offers 45 regular courses including BTech, MTech, Bachelor of Masters Physiotherapy, MSc, MBA, MCOM, MCA with PhD degree. The university also offers 17 programs approved by UGC, AICT and DEC through distance mode. The university has been accredited as A grade by NAAC since 2002 many times. Our department is one of the premier departments in the field of print education and research in India. It was established in 1996 and at present various programs in printing and packaging starting from bachelor to masters to PhD is being offered. This department is fully equipped with state-of-art
equipments to facilitate regular teaching and research activities. Once again, I welcome you all to the inaugural session of the North Zone Print Olympiad 2020 contest. Your blessings and support are highly appreciated for the success of the mega event. Once again, thank you, VC sir, for sparing your valuable time from your busy schedule to bless this unique program today and making the event meaningful and successful. Now I take the opportunity to invite our chief guest, Professor Tankeshwar Kumarji, to bless us. Chief guest of today's inaugural session of North Zone Print Olympiad 2020, Professor Tankeshwar Kumarji, Honorable Vice Chancellor, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. He is credited with UGC Professor of India under FRP. He has more than 25 years of teaching, research, and administrative experience and has held many crucial positions at Punjab University, Chandigarh. He has published more than 80 research papers in reputed national and international journals and visited America and various European countries many times. He has been associated with many prestigious academic, research, and administrative bodies at the national level. Under his dynamic leadership, the university has achieved many milestones in the recent times, and the university is progressing at all fronts. With this brief introduction, I am honored to invite Professor Tankeshwar Kumarji for his blessings for the North Zone Print Olympiad 2020 contest. Over to sir, VC sir. Please. Thank you very much, Professor Anjan Kumar Baral. Yeah, I am very happy to be here with you, and I say good morning to everybody who is participating in this event, and my students of the Guru Jambheshwar University and all other students of North region. I came to know that you are organizing a print Olympiad. It is a 4th edition, and I am happy to be part of it. I know the Guru Jambheshwar University has been, has been part of it earlier also. The Guru Jambheshwar University participated in 2 editions earlier also, and this is all because of our the Mr. Kamal Chopra ji, who has been associated with this master printer and the offset printer association Ludhiana. He has been bringing us all these events to the university and has been helping our students as well as the printing technology in the country for so many years. I am really thankful to Mr. Kamal Chopra ji for taking these steps, and also Anjal Baral and his colleagues from the printing technology. I could also see Mr. Vijender from Department of Printing. And this event is very important in the sense that as you know that we are passing through COVID-19 crisis, and the India has taken a very different step. I will say this has may have come as an opportunity. This is you say we have the challenges, we have the problems, but but every challenges come with a new opportunity, and we are looking for this to convert into the opportunity, and we are saying that our country is to become maybe say the Atmanirbhar and so all that, that means manufacturing. The manufacturing in the country is to grow like anything, right? So when we talk about the manufacturing, the manufacturing thing always, I say the link with the printing and packaging. There cannot be any manufacturing, unless you say it, pack it and
Obviously the printing has to be there also on the packaging also. All these things are basically converting this challenge into opportunity will be benefited to all the technocrats people. And one of the technology is obviously, as said by Professor Anjan, is obviously is the printing and the packaging, and we will be benefited. We will be benefited definitely. And we also say that we have various bigger technologies which are coming up, and we have to change our strategies for all technocrats. And for example, we have to go for our self dependence will come only if we think of becoming entrepreneurs. If we become the entrepreneurs, and if we produce our students who can create the jobs for others, right? So then obviously these things will be very, very important. And I could also see that we have in the recent time we have this our new education policy has also come up. Right? The new education policy is also providing people the different flexibility in the system, and the also different they can go to different stream, they can choose a different, you have the choice ways and things are which are some of things are already there, making the things more the flexible for the students from the ninth class itself will be a challenge for the country, but it will bring a different kind of opportunities for our students, and obviously for those students which are passing out from our university, or passing out from any other university. As we see, this is a North Zone competition for the Print Olympiad. I really appreciate the idea that you have taken up, Mr. Kamal Chopra ji and Professor Anjan Baral and his team from the Guru Jambheshwar University. And I first once again congratulate all of you and all the participants. I wish them success. And it is a competition, but participating in a competition is a healthy sign. But winning and losing should not matter. It's the learning which should matter. So I hope you will be learning lot of things by participating in this event. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much. It was very nice to listen such words from you, of encouragement from you. Sir, we are just doing our duty to promote printing, and that is the main cause. Thank you very much, sir, for your participation. I'm highly Thank you. Thank you, sir, for your blessings. Now, moving forward, now I would like to request our chairman, Print Olympiad, 4th edition, Professor Kamal Chopra ji, to say a few words and to move forward. Professor Kamal ji. Thank you, Brother. Sir, actually, I'm thankful to Dr. Tankeshwar ji. Since with a very busy schedule for a Vice Chancellor, it is not possible. He has devoted time for us, and that shows his enthusiasm for the printing also. I'm thankful to you, sir, for joining. So, बच्चों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. And I wish आप ही नेशनल चैंपियन बनो. ये जो गोल यही खत्म नहीं होगा. नॉर्थ के बाद आपको नेशनल भी जीतना है. जीतने के लिए लड़ना ही जरूरी होता है, और बिना लड़े आप जीत नहीं सकते. I'm thankful to the students who participated. बहुत अच्छी बात है. हमारे पास इस समय लगभग 112 के करीब बच्चे हैं. It's a good thing. I'm seeing the good sign. बाकी बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह करना है, थोड़ी टेक्निकल बातें आपको समझा देते हैं. हमारे बजिंदर जी भी मेरे साथ ही हैं. I'm thankful to Bajinder for preparing all these things. अभी जैसे आप लोग फिर कहा, एक बार फिर से आपको फिर से कह रहे हैं, ये असली इम्तिहान नहीं है. असली इम्तिहान होगा जब आप में से 5 रह जाएंगे, तब असली प्रिंट ओलंपियाड. जब आप दुनिया के सामने बोलेंगे, प्रिंट ओलंपियाड विल बी रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड
सारी दुनिया सुनेगी और उसको जज करने के लिए दुनिया के 4 कोनों में जज बैठे होंगे, इंडिया में नहीं होंगे, बाहर होंगे। तो वो असली इम्तिहान है, ये वहां तक पहुंचने की एक छोटी सी सीढ़ी है, क्योंकि वहां पर हम सारे बच्चों को नहीं बुला सकते। वहां पर आप में से जो 5 चुने जाएंगे, उन 5 को एक टाइम मिलेगा बोलने के लिए, तब ये रिटर्न नहीं होगा, ओरल होगा। आपको एक स्पीच देनी होगी ऑन गिवन सब्जेक्ट, और माइंडेड उस स्पीच को सुनना। आपका इंडिया नहीं, सारे वर्ल्ड के प्रिंटर सुन रहे होंगे और वर्ल्ड के 4 डिफरेंट कोनों में बैठे जज आपको देख रहे होंगे। उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? जीतना हारना तो बहुत बात की बात है। तो जो टेक्निकल बातें हैं वो बजिंदर जी बताएंगे, जिन्होंने सब अरेंज किया है, कैसे हम कर रहे हैं। ऑनलाइन में कई मुश्किलें हमें भी आ रही हैं, हो सकता है आप लोगों को भी। तो ये सिस्टम है, ऑनलाइन हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम ऑनलाइन का जमाना ही है। तो इसको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करने का एक बड़ा रीजन ये भी था। द मेजर रीजन टू ऑर्गेनाइज इट ऑनलाइन वाज दैट स्टूडेंट मस्ट लर्न हाउ टू वर्क ऑनलाइन. Now in the printing presses also the people are starting working online. Online is increasing day by day. So we have to be online now. To avoid the other things, जैसे कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, और कुछ वो जो बच्चे कुछ शरारतें कर जाते हैं, कॉपिंग ना हो, उसको करने के लिए हमने काफी कुछ किया है। लेकिन ये नहीं है कि सब कोई परफेक्ट है। यू आर मोर स्मार्टर देन अस। आजकल हमने देखा कि बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो हो सकता है आप कुछ और हल निकाल लो, वो अलग बात है। लेकिन वो तो आपकी किस्मत या हमारी किस्मत। हमने जो किया वो बलजिंदर जी बताएंगे। बलजिंदर जी बताइए। Yeah, wishing a very good morning to dear students, and the rule regulations, some of that I am summarizing here. Students, आपके पास half an hour रहेगा, आधा घंटा रहेगा, and you will have 50 questions. आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे, and each question carry 1 mark. तो जो टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसमें 10-10 क्वेश्चन के आपके पास 5 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके लिए अलग से सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे फॉर्म, उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना नेम, अपना यूनिक आईडी, कॉलेज नेम, ये सब आपको फिल करना है। ये मैंडेटरी है, इसको फिल के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। After that, you will come through 5 different sections: Section 1, Section 2, Section 3, Section 4 and Section 5. हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। You will have 30 minutes time to cover all that. याद रखें बच्चों, हर एक सेक्शन जैसे ही आप कवर करके अगले सेक्शन पे जाएं, आपको फिर से एक बार जूम विंडो पे आना है, मैंडेटरी है, 5 या 10 सेकेंड के लिए, ये याद रखना। ऑल्सो मेन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जैसे आप अभी ऑनलाइन है, जैसे आपका कैमरा ऑन है, आपका कैमरा एज इट इज रहेगा। आपको जूम को क्लोज नहीं करना किसी भी हालत में। जूम को आप मिनिमाइज करेंगे और व्हाट्सएप पे जैसे ही कमल सर स्टार्ट करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो एग्जाम लिंक है वो पहुंच जाएगा। तो आपके नंबर पे जैसे ही एग्जाम के लिए जो लिंक है वो पहुंच जाएगा, आप क्लिक करेंगे और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली 30 मिनट्स, याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे ही कमल सर स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 30 मिनट्स में लिंक अपने आप क्लोज हो जाएगा। और वो क्लोज होने के बाद आपने अगर उसके बाद सबमिट करने की कोशिश की तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो द मेन थिंग इज आप अपने टाइम लिमिट का ध्यान रखें। आप 29 मिनट 58 सेकंड पे भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन चाहे आपके 50 के 50 क्वेश्चन भी ठीक क्यों ना हो, लेकिन आप 30 मिनट्स क्लोज कर दी तो आप सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इट इज। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में 30 मिनट्स क्रॉस ना हो, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। वी विल रिमाइंड यू, आई विल रिमाइंड यू 2 मिनट्स बिफोर क्लोजिंग द सेशन, कि एग्जाम को क्लोज करने से पहले 2 मिनट पहले आपको रिमाइंड कराया जाएगा कि लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग। और उससे पहले अगर आप सबमिट करना चाहें तो भी आपको बेनिफिट होगा। जो मार्किंग होगी वो कैसे होगी, जजेस है हमारे पास, ऑल इंडिया से एक्सपर्ट हैं और जजेस हमारे पास। सो जजेस 2 वेज में इवेल्युएट करेंगे उसको। सबसे पहले जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं टोटल जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क करा दी है, सो अटेंडेंस मार्क के बाद लिंक जाएगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क की है। तो उनके पास लिंक जाने के बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा एग्जाम का, एंड जजेस 2 वेज में उसको एनालाइज करेंगे। नंबर 1, टोटल जितने भी आपके रेस्पॉन्सेज आए हैं, कितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है,
उनके 30% नेक्स्ट राउंड में जाएंगे. सो आउट ऑफ ऑल यू, whether it is diploma or degree, the top 30% students will be passed and rest will be failed. And under one thing, मान लिया कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ जा रही है, मान लिया 42 मार्क्स है, तो 42 मार्क्स पे अगर 5 या 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसने पहले सबमिट किया है वो टॉप 30 में जाएगा. ओके, सो याद रखना दोनों चीजें काउंट होंगी. सबसे पहले तो मार्क्स देखे जाएंगे किसके ज्यादा. अगर सेम मार्क्स काउंट हो रहे हैं और फिर उनमें से हमें चूज करना टॉप 30 में, देन जिसने पहले रेस्पॉन्स दिया है दैट विल बी आउट. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे रूल रेगुलेशन थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. याद रखें 30 मिनट्स टाइम फॉर 50 एग्जाम, 50 क्वेश्चंस, यू हैव 30 मिनट्स. अगर आप इधर उधर से चीटिंग भी करना शुरू करोगे तो भी आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा. सो डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट. आल्सो योर कैमरा इज ऑन, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई यू. अगर किसी का कैमरा ऑफ हो गया उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. याद रखना स्टूडेंट्स, किसी भी टाइम अगर आपका कैमरा ऑफ होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. सेकेंडली, हर सेक्शन के बाद, 5 सेक्शन है, हर सेक्शन के बाद आप अपना फॉर्म मिनिमाइज करेंगे. मिनिमाइज करने के बाद आप जूम पे एक बार 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए फिर से आएंगे. ये भी ओके स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? आई थिंक all instructions have been passed to you, and wishing best of luck to all of you. And now time for Kamal sir to start the exam. Please sir. थैंक यू ब्रजेंद्र जी. जो ब्रजेंद्र जी ने बताया मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ लैंग्वेज में. मेरे पास अभी क्योंकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ बच्चे अटेंडेंस अपनी चैट पर लगा रहे हैं, आपने अटेंडेंस यहाँ नहीं लगानी. बड़ी सिंपल बात है, आपके पास हमारे मैसेज आ रहे हैं, जिस नंबर से मैसेज आ रहे हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे अपने अटेंडेंस. तो ये यहाँ पर चैट पर अटेंडेंस नहीं लगानी, वो एक डिफरेंट सिस्टम है. हमारा अलग स्टाफ लगा हुआ है उसको मैनेज करने में, मैं नहीं कर रहा. तो तभी मैनेज होगा जब फोन में आपकी अटेंडेंस व्हाट्सएप में पहुंचेगी. पहली बात. सेकंड बात, जैसे इन्होंने बताया कि आपके कैमरे हमेशा ओपन रहने चाहिए, और कुछ बच्चों ने अभी भी अपने नाम से पहले यूनिक आईडी नहीं लिखा. जैसे अंकित शर्मा मेरे पास है, जो भी है प्लीज अगर अपने नाम से पहले अपने यूनिक आईडी प्लीज लिख लीजिए. इट विल बी हेल्प यू, अदरवाइज यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड बाय द जजेस. दूसरी बात. तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जीतेगा कौन? सिर्फ पूरे क्वेश्चनों के आंसर देने जरूरी नहीं है, जरूरी कम से कम टाइम में देने जा जरूरी है. तो असली विनर वो होगा जो पूरे आंसर के, पूरे क्वेश्चंस के आंसर या मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिनिमम टाइम में देगा. बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए. इसलिए आपको अपना जवाब, जितनी जल्दी आप अपना आंसर सबमिट करोगे उतनी ही ज्यादा आपके जीतने के चांसेस हैं. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पेपर चालू करूं तो मैं आज के जजेस से मिलाना चाहूंगा आपको कि हमारे जजेस कौन कौन हैं आज. सबसे पहले तो आप सब, कई जो आप लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, आप उनसे पढ़े हो काफी बच्चे. हमारे मिस्टर बीडी मेहंदी रत्ता जी टीचर हैं, उन्होंने कई बुक्स भी लिखे हैं प्रिंटिंग के ऊपर, और प्रिंटिंग क्वालिफाइड है, डिप्लोमा होल्डर है इलाहाबाद से. Myself BD Mehendi Ratta. I first of all thank Kamal ji and his team for inviting me to be the judge for North Zone. I have been working as head of department printing technology in Pusa Institute of Technology. Number of students might be knowing. As Kamal ji told, I have written many books, and I have also been principal in Delhi government polytechnics like GB Pant Polytechnic and Aryabhatta Polytechnic. So I have got more than 40 years teaching experience, and I wish all the participants best of luck in the competition. थैंक यू महेंद्र जी. तो मिस्टर A.K. सिन्हा है दूसरे जज हमारे. प्रिंटिंग, आप में से बच्चे प्रिंटिंग करके गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते होंगे काफी बच्चे. तो गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी नौकरी है इंडिया में, सबसे बड़ी पोस्ट फॉर ए प्रिंटर इन इंडिया इज द डायरेक्टर प्रिंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हमारे पास वो इस समय तो नहीं है, वो पहले थे, अभी रिटायर हो गए हैं. मिस्टर A.K. सिन्हा. सिन्हा साहब. मैं A.K. सिन्हा. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रोफेसर कमल चोपड़ा, डॉक्टर बराज, and given me an opportunity to be the judge of this magnificent
program of Principal Olympiad. I wish all the success to all the students. All the best. Thank you very much. हमारे साथ एक जज और है, मिस्टर अनुभव शिक्षार्थी, who is first from इलाहाबाद. ये मेरे सहपाठी थे, हम इकट्ठे थे. मिस्टर शिक्षार्थी, प्लीज. अनुभव शिक्षार्थी. I'm Anvosh Shiksharthi, and I wish all the students participating today, wish best of luck to all the participants. I've qualified, as Mr. Kamal said, that from Allahabad, NRIPT, and then I got a chance to study abroad also. I've had over 45 years of experience in private sector in various capacities. That's all I would like to say, and wish you all the best. Thank you. इसमें प्रेजेंट है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर सुभाष चंद्र जी. He has come here as a representative of All India Federation. कमल जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं. ये जो आपने प्रिंट ओलंपियाड ये नॉर्थ जोन 20 का ऑर्गेनाइज किया, इट्स नॉट ए इजी जॉब. आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जितना ख्याल रखते हैं, ना कि प्रिंटर्स का ख्याल रखते हैं, स्टूडेंट का उससे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं. मैं कुछ साल पहले आपके साथ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी आया था और ये मैंने सारा प्रोग्राम खुद देखा था. इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी है कि मुझे हरियाणा के अंदर कि मुझे प्राउड फील होता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बना रखी है. अभी मैंने वाइस चांसलर साहब को सुना, उनकी इतनी ब्यूटीफुल स्पीच थी. हमारे प्रोफेसर मिस्टर बरार जो हैं बेस्ट प्रिंटिंग टीचर ऑफ द वर्ल्ड हैं, और इतने अच्छे आपने अदर प्रोफेसर एकेडमी स्टाफ ऑफ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो इसमें प्रिंट ओलंपिया में अवार्ड है आपने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया. ये बहुत ही तारीफे लायक काम है. स्टूडेंट्स को जब पढ़ के निकलते हैं उसके बाद उनका कैरियर का सवाल होता है. एक हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, जैसे वो सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है, आजकल वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है. आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए. तो आप ये इतना प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये जो भारत की नई जनरेशन है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ के आ रही है, और उसको इसकी रियली बड़ी डिमांड है. प्रिंटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे कॉस्टली मशीनरी इसमें है, और इसमें टेक्निकल आदमियों की बड़ी जरूरत है. इंडिया के अंदर क्या, फॉरेन में भी इसकी बड़ी डिमांड है. और आपने ये जितना ये बढ़िया आज ओलंपिया कराया, ऑनलाइन कराया, ये इतना आसान काम नहीं, इसमें बहुत दिक्कत आती है. और आपने एक बहुत वंडरफुल काम किया है. ईश्वर आपकी आयु लंबी करें. और विजेंद्र जी को भी मैं सुन रहा था, इन्होंने भी आप सभी को पूरा गाइड भी कर रहे हैं. और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन जैसे आप कुछ गलती भी हो जाती है, दो इससे लोग गलती भी बच्चे कर देते हैं, आप उनको इस टाइम एक्सक्यूज कर रहे हैं. पर ये ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही ऑनलाइन इसे वंडरफुल. ये ऑनलाइन ओलंपिया मेरा फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है. तो यू आर डूइंग वेरी वेल. बाकी मेरा जो सब्जेक्ट है वो वोट ऑफ थैंक्स का आपने मुझे दिया, मैं उसमें बहुत कुछ बोलूंगा, पर मेरे पास कोई शब्द नहीं है प्रिंटर्स की. तो आप देखिए ना, आप तो वर्ल्ड फेम आदमी हैं. आप प्रोफेसर कमल चोपड़ा, आप वर्ल्ड फेम आदमी हैं. आपने प्रिंटर्स के लिए, हिंदुस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं. पूरा वर्ल्ड आपको जानता है. आपने अभी पीछे रिसेंटली पैमेक्स करी, वर्ल्ड प्रिंट कांग्रेस करी. मतलब प्रिंटर इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट से उनको ग्रांट दिला के प्रिंटर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाई, बाहर जर्मनी ले जाके, अमेरिका ले जाके, यूके ले जाके, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आपने इतनी हेल्प करी. तो ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है. एक किसी को
नॉलेज का दान देना ये बहुत बड़ा काम है। और आज स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर सिन्हा यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर सिन्हा, मेहंदी रता साहब जो वर्ल्ड फेम टीचर्स हैं, वो इनको दुनिया जानती है, मिनिस्टर शिक्षार्थी हैं, इनको भी आपने ऑर्गेनाइज करा है। इससे वंडरफुल जॉब और वेरी डिफिकल्ट जॉब। और ये ओलंपिया ऑनलाइन हो रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे 4 कोऑर्डिनेटर हैं, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। चारों से मैंने कहा कि अपने अपने 75 क्वेश्चन ईच, डिप्लोमा के 75 और डिग्री के 75 मेरे को भेजो। वो जो मेरे पास क्वेश्चन आए 300, वो 300 मैंने इकट्ठे एक फाइल में इकट्ठे कर लिया और उसको फिल्टर कर लिया। उसमें से कोई भी 50 चुने। अब किसका क्वेश्चन किसको आ रहा है, नोबडी नोज, इवन द कोऑर्डिनेटर को नहीं पता कि ये नॉर्थ के बच्चों को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। वो हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया, उस बैंक में से मैंने 50 क्वेश्चन चुने और उसका एक लिंक बना दिया। वो लिंक या तो मेरे को पता है या बजिंदर को, और किसी को नहीं पता। नोबडी, इवन लिंक में क्या है वो मेरे को भी नहीं पता, बजिंदर को पता है। तो हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की है ताकि किसी को ये ना लगे भी कोई पार्शियलिटी हो रही है। तो बच्चों, बी रेडी फॉर दैट। आई एम गोइंग टू सेंड द लिंक टू यू। सबको लिंक मिल गए। वी हैव सेंड द लिंक टू बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री। आपके व्हाट्सएप पर लिंक आ गया। नाउ यू स्टार्ट योर पेपर्स। Time started just now, 11:53. यस, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आधे घंटे ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन यू कैन सबमिट अर्ली। बेटर यू सबमिट इट अर्ली, दैट विल बी बेटर फॉर यू। बच्चे मैसेज करें, लिंक नहीं आया, लिंक हुआ ऑलरेडी सेंट ऑन द ब्रॉड। आपके सबको लिंक मिल गया जो आपने मैसेज आ रहे हैं। एट ए टाइम सबको चलेगा, इंडिविजुअल लिंक नहीं है, ये ग्रुप में जा रहा है। Check your WhatsApp number. Check WhatsApp. 11:52 पे गया। 11:52 पे गया। Some students have written they have not got links. But Karthik, Abhishek. सर लिंक इज चेक ऑन सेंड ऑन द व्हाट्सएप और आपको मिल भी गया, हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, एवरीबॉडी रिसीव्ड इट। सर एक्चुअली लिंक इज सेंड ऑन व्हाट्सएप एंड वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि सबको मिल चुका है वो। ओके, गुड सर। एक आईडी है सर, जैसे 1470800012 इनको अभी तक नहीं, वो ये शो करना मिल गया। अगर उन्होंने नंबर गलत दिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो 147 के थे वो 147 उसका नंबर ना ये है गीता ने की, इसमें उनका नंबर भी हो गया, व्हाट्सएप से और नंबर का नाम है उसको सेंड कर दिया। नहीं भेजना तो गलत है। द स्टूडेंट हु आर गिविंग द 2 नंबर्स उनको एक ही नंबर पर जाएगा। बिल्कुल सर। अब देखो आपने पहले नंबर और भरा, अब सेकंड भर रहे हो, तो हाउ डिड वी नो द स्टूडेंट से? या वी कांट डू। या एग्जैक्टली।
मैं बात तो बता रहा हूँ विजेंद्र जी, मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैं एक लड़का है उसकी जगह मैं एग्जाम दे सकता हूँ। ये देखो भेजा हुआ है? हाँ गया हुआ गया था, हुआ है। बट फिर मैंने उसको नए नंबर से वो नए से नहीं भेजना, क्या पता उसकी प्रॉब्लम। नए नंबर से नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ये स्पेशली 147 वाली बात वही है, उन्होंने पहले जो नंबर दिया उस पर मिल चुका है उनको। एग्जैक्टली गुड सर। क्योंकि अभी देखो ना ऑनलाइन में स्वादी ऐसी गलतियां नहीं हो सकती, वी कैन चेक किसको मिला किसको नहीं मिला। नेहा जहाँ की बात है, गिवन अनदर नंबर जिस पर उनको मिल गया, मैसेज भी उस नंबर पर जा रहा है, रिस्पांस भी आ रहा है, उसी नंबर पर लिंक गया। एग्जैक्टली वी कांट हेल्प। ये एक हैंड रेजन से पूछो क्या बात है, चैट में पूछ लो। कार्तिक इसके पास 131 आईडी है सर, इसके पास नहीं गया अभी तक। 131 नहीं गया, कैसे 131 देखो 131 देखते हैं। अगर किसी को लेट में मिलेगा तो चिंता ना करो, क्योंकि आपको आधा घंटा उसके बाद ही मिलेगा, फॉर्म बंद होगा आधे घंटे बाद। वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखना 131 क्या है। बिल्कुल 131 131 करो, रजिस्टर्ड टीम कहीं नहीं है यार। मेन लिस्ट देखना, इसमें जो मेन है वो फर्स्ट मास्टर कॉपी में 131 012 एक मिनट 131 देख लो। 131 फटाफट देख सकते हो नंबर, इतनी देर को क्या है? कार्तिक हाँ लिस्टेड है, लिस्टेड है, पहले देख। हाँ लिस्टेड है। फिर क्या देखो जाएगी, डिप्लोमा डिग्री देख सकते हैं, इसमें जो डिप्लोमा डिग्री है डिप्लोमा का ये देख 131 क्या 131 इन्होंने जूम पर रजिस्ट्रेशन बाद में की होगी ना, उसमें भी नहीं है। ये सारा डिग्री डिप्लोमा बच्चा अब भेज दे 131 I think so he is registered only today morning। या अभी नहीं हुआ। दो और हैं सर, एक तो है 012 एंड 080। दैट्स कौन सा बताइए मेरे को नंबर देखो कब तक आपको 131 को भेज और लिखाना है कौन सा करेगा 012 मनोज भारद्वाज। 012 और दूसरा 080 लक्ष्य है। मैं देखता हूँ तो 012 तो जा चुका है। ओके उनको तो क्या हुआ, उनको दोबारा नहीं भेजेंगे। इसको भी क्या हुआ है 131 भी क्या हुआ है, व्हाट इज दैट? ओके वी कांट हेल्प। ओके क्या हुआ हमारे उसका नेट नहीं चल रहा, मार्केट का है। आपका नेट नहीं, उनका नेट वहां प्रॉब्लम है, उनका नेट नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे। 131 वी एक्चुअली ब्रजेंद्र हाँ जी सर, हाँ जी सर। कैन यू इंटीमेट दिस 131 दैट उसका नेट में प्रॉब्लम है, रिसीव हमारा चलेगा वो ठीक नहीं होगा। और दूसरी भी प्रॉब्लम यही आ रही है, वो बंदा हमको व्हाट्सएप कर रहा है, ऑलरेडी उसको दिया हुआ है। हां ऑलरेडी गया हुआ है, यही चक्कर है। ये कौन है वो? ये है रिमझिम करके है, रिमझिम वो भी कर रही है, उसको उनका नेट की प्रॉब्लम है, यहाँ से व्हाट्सएप जा चुका है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हम साथ साथ ये बैठिए मैडम, साथ चेक करिए जो भी प्रॉब्लम, ये भी दो देख लेना, ये दो ये 012 और ये देखो इस बंदे ने तो देख भी लिया, ठीक है बात खत्म होगी ना। आप जो जा चुका उनको छोड़ो, उसने बंदे ने देख भी लिया फिर भी कहता मेरे पास नहीं गया। वन टू ये पहले बेटे मास्टर में देखा कर 1-2 कहाँ है, फिर देखो मास्टर को रखो, इसलिए मास्टर पढ़ जाता है। अरे इसके अंदर 1-2 कौन डिप्लोमा की डिग्री उधर देख पहले बेटे जी, उधर निकोस में है तो जाएगा, निकल ही जाएगा। डिग्री में 1-2 है, ये डिप्लोमा की तेरे पास है दोनों ये भी क्या हुआ क्या हुआ, बस ठीक है छोड़ दे, अगला देख, ये छोड़ दे इसको, बाद में अगला देख तू 80 नंबर 080 पहले बोल दूसरा फिर उसको चेक कर। डिप्लोमा के ट्रिको काली डिप्लोमा एक जो 80 कह रहे हैं उसकी प्रेजेंट में लगी, इसलिए नहीं गया सर उनके पास। 080
ये 080 कौन है? कौन है? हाँ? लक्ष्य मिश्रा, उसको लक- कर हाँ? नहीं अटेंडेंस नहीं लगी तो रखने लगी है? नहीं लगी, मैंने अभी तक लगाया, अभी तो बैठे ही होगा फिर। नहीं फिर नहीं भेजना। अच्छा बच्चों मैंने कहा था जो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगवाएंगे उनके पास नहीं जाएगा। ये जो 080 है लक्ष्य है, उसने अटेंडेंस नहीं लगवाई हमारी, अगर वो यहाँ बैठा भी है तो उसको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। Very well. उसने अटेंडेंस नहीं लगवाई है। Now let's monitor, sir. Around 10 people are monitoring you, students. Around 10 people are monitoring these students, and अच्छी बात है। ये गीता नेगी क्या है? इसका अभी नंबर सेव किया हुई है ना, जिसमें व्हाट्सएप दूसरे नंबर से कर रही थी, तो मैंने लिंक उसको सेंड किया, तो वो डिप्लोमे का था, बीटेक का कर दिया। ये तेरे करना सुना होगा आपका बीटा ही है वही है जिसने व्हाट्सएप और नंबर से कर रही थी। तो गीता नेगी है। यही गीता थी ना, मैंने सेव किया अभी इसका नंबर। आपने आपने प्रेजेंट लगवाई दूसरे नंबर से, और माँ ID नंबर 075, अपना कैमरा ऑन कीजिए, रूम पे आइए, अपना कैमरा ऑन कीजिए। ID नंबर 075, ID नंबर 119, अपना कैमरा ऑन कीजिए, रूम पे आके। ID नंबर 119, ID नंबर 117, जूम पे आके कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से। 117 ID नंबर। राजीव वर्मा 117, अपना कैमरा ऑन कीजिए जूम पे आके। 117 राजीव वर्मा। जल्दी अनम्यूट। हाँ ठीक है। अजय कितना टाइम लगेगा? टाइम नाउ इज 12:06। बताते रहो इनको।
बिजली स्क्रीन रोल करके देखते रहो। देख, so 10 people are just monitoring. अब थोड़ा रोल करके देखते रहो कहीं तो आगे। ID number 61. ID number 61. Come to Zoom online. Open up your camera. ID number 32. Open your camera. ID number 32. Why is left the camera? Why you are not on 07D? 07 दीपक प्लीज हाँ यहाँ रहो कैमरे के बाहर मत जाओ। Is there anyone else also with you, Ankit? आप बातें कर रहे हो किससे? दैट मीन कोई और भी आपकी हेल्प कर रहा है। सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो प्लीज एंड डोंट गो अवे फ्रॉम द कैमरा। बीटेक में 3 स्टूडेंट्स ने सबमिट भी कर दिया है। आप अपना क्वेश्चन पहले भी दे सकते हो, जितना जल्दी दे दोगे आपको फायदा ही होगा। यू विल अर्लियर सबमिटिंग द क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। डिप्लोमा में 9 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया अभी। इन्होंने नाम भी नहीं बदला अपना, कलिंदी कॉलेज लिखा हुआ है। हुई है बजिंदर जी, बजिंदर जी
Training to start from the first. आई थिंक ऐसा ना होना कि ये दो जगह तो ज्वाइन नहीं किया हुआ नोट करो, एक ही था कलिंदी कॉलेज का, एक ही स्टूडेंट था। Training करने नॉट चेंज द नेम, अपना नाम लिखो, क्या नाम है आपका, जस्ट राइट योर यूनिक आईडी एंड नेम। राइट क्लिक करके अपना नाम और यूनिक आईडी लिखो। चेंज योर यूनिक आईडी एंड नेम, आपने बदला नहीं अब तक। थोड़ा स्क्रॉल करके देखते रहो जरा। कलिंदी कॉलेज अपना नेम एंड आईडी चैट बॉक्स में डाल दें। इनको चैट कर दो। इनको चैट कर दो तरह। There are many people who have not put their unique ID before that. Yes, very nice. फिलिंदी कॉलेज का हुआ पर बच्चा, फिलिंदी कॉलेज का ये नेहा ज्यादा पहले भी नहीं किया था, रीनेम इसका नहीं नहीं कौन क्लिंदी कॉलेज, इधर नेहा झा लिखा, कीर्ति हंडा। तो कीर्ति, ये नेहा झा, इसका नेहा झा का नंबर क्या है? नेहा झा का शायद 147। नेहा झा का ये है नहीं, ये इसका वो देख रहे बेटे, यूनिक आईडी देगा और कुछ नहीं बस। कलिंदी कॉलेज दोनों का यूनिक आईडी है 147।
Students, even after submission, you need to be online because results will be announced after 10 to 15 minutes of the final time. आप सबमिट बटन कर दीजिए, it will automatically reach to us. सेक्शन 5 के लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप सबमिट करें. टाइम नाउ इज 12:20, लास्ट 3 minutes. ये क्वेश्चन आंसर अपने आप ही क्लोज हो जाएगा ना जल्दी? या बस ठीक है, फिर तो कुछ चक्कर ही नहीं. आपको बी केयरफुल, जितनी जल्दी सबमिट कर दोगे बेटर है. ये एक हैंड रेज है, नेहा झा वांट टू से समथिंग. नेहा से देखो क्या बात है बजिंदर जी. सर द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि हमने सबमिट कर दिया, अब क्या करना? ठीक है, अभी आप ऑनलाइन be online. We have some talks and there will be expert talking with you. Until the judges are assembling the result in the background, we will discuss something. Very important thing we are going to discuss. जो बच्चे अपना सबमिट कर देते हैं वो यही रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, वीडियो अपना ऑन रखेंगे, माइक बंद रखेंगे. We have very interesting things to discuss with you regarding your future career. हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट हैं throughout India. We will invite them. They will speak about your future career. अभी प्रिंटिंग का कोर्स करने के बाद क्या करना है, नौकरियां कैसे ढूंढनी है, काम कैसे करना है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो बातें करेंगे हम. उसके बाद जितना टाइम हमारे पास होगा, जब तक अपने जजेस एक रिजल्ट असेंबल करेंगे, तो डोंट लीव, बी देयर. हमारे पास राकेश कुमार जी हैं और उड़ीसा से भारा जी हैं, तो वी विल डिस्कस विद देम. विजेंद्र जी कितना टाइम रह गया? 1 minute. Last 1 minute. Submit, students, submit. Otherwise, you will not be able to submit. Last 1 minute. अगर आप सबमिट टाइम पर नहीं करोगे तो सबमिट नहीं कर पाओगे. फिर कभी नहीं. अभी सबमिट. Last 15 seconds to submit. 10 seconds only to submit. एक दो बच्चों को पेपर लेट मिला था, उनके पास टाइम होगा थोड़ा सा 1-2 सेकंड, बाकी तो सबमिट हो जाएंगे. अदरवाइज आपका लिंक बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक. लिंक विल क्लोज, यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट. टाइम 5 more seconds. Okay, 5 seconds more. मेरे को तो सिग्नल आ गया था टाइम आपका. ओके, डिग्री के लिए बंद हो चुका है अभी. हाँ, डिग्री के लिए खत्म हो गया. दोनों बंद हो चुके हैं अभी. दोनों बंद हो गए. गुड. अभी एक दो बच्चों के कुछ, एक बच्चे को लेट गया था, शायद उसका हो. आई थिंक 1% जितना सागर शायद. सो बच्चों, दैट्स गुड. आप लोगों ने सबमिट कर दिया और मैंने पहले कहा यू ऑल आर विनर, क्योंकि जीतता वही है जो पार्टिसिपेट करता है. जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो तो जीत नहीं सकता. तो बच्चों, ये जैसे मैंने बताया था, आप लोगों ने जो आंसर सबमिट कर दिए ऑटोमेटिकली वो गूगल फॉर्म में डिपॉजिट हो गए हैं. रिजल्ट भी लगभग ऑटोमेटिक है, लेकिन हमें दोनों रिजल्ट मिलाने पड़ेंगे. जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और जो डिग्री के स्टूडेंट हैं, दोनों के ग्राफ मिला के उसको हम सॉर्ट करेंगे एज पर द टाइम. देन जजेस विल सी किसने ज्यादा नंबर लिए हैं. हाँ, तो जजेस रिजल्ट कंपाइल करेंगे. जो जजेस हैं वो बैकग्राउंड में रिजल्ट बना रहे हैं, तो जब तक रिजल्ट तैयार होता है हम लोग आपस में बातें कर सकते हैं. राकेश जी, मिस्टर राकेश कुमार, ये आपके टीचर ही हैं. हेलो एवरीवन, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र. मैं यहाँ से लास्ट 7 ईयर से यहाँ पे वर्क में कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और हर एक प्रिंट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते रहे हैं. मैं खुद इंडिविजुअली, हमारे कोलीग्स और सभी यहाँ के स्टूडेंट प्रिंट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है उन्हें.
तो आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए। ये देखो विनर एक ही होता है, पार्टिसिपेट करने से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो खुद को इस लिंक के साथ ज्वाइन किया हुआ है, आपको इन फ्यूचर में ये बहुत कुछ सिखाने वाला पल रहेगा आपके लिए। प्रिंटिंग फील्ड से रिलेटेड न्यू टेक्निक्स पे भी काफी कुछ ही डिस्कस रहेगा इसमें यहाँ पे। और आप एक कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल लेवल का ये कंपटीशन है आपके यहाँ पे। आप सभी यहाँ पे ज्वाइन देख रहे होंगे अभी। हाँ बच्चों, सभी ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन को फेस करना है, कैसे डिफरेंट राउंड है, और हर एक राउंड अपना एक टेक्निकल्स रहेगा सभी का। इसमें हर एक राउंड में आपको सीखने को मिलेगा, प्रिंट फील्ड के बारे में जानने को मिलेगा, और डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, और आपका इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये जरूर आपको वर्क में आएगा। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया बच्चों के लिए। बहुत लास्ट टाइम की तरह इस बार भी बच्चे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमारे यहाँ तो स्टूडेंट पहले से तैयारियों में लगे हुए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। बहुत एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है सर आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए। थैंक यू के जी। और हमारे पास हेमंत कुमार मिश्रा जी हैं। हेमंत कुमार मिश्रा जी। यस सर। बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी सर। आई एम सॉरी आई कुडंट कम इन कांटेक्ट इन कैमरा बिकॉज़ ऑफ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बिना कैमरा के बोलिए सर, आपकी बात तो सुनते हैं सर। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी हियर, finding Kamal sir here leading such a marvelous ceremony for the entire nation zone wise. So I also feel proud of myself to be in the platform in the national domain. I think the thing will move in a very tremendous impact, and I think it will also give us further scope to innovate certain things like writing some books, giving some tips to the young talents in printing professional. I will seek help from Kamal sir, Professor Anjan. It's a pleasure to be here, sir, and hope to be the best effect out of this. थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं मधुरा महाजन जी पुणे से, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वेस्ट की। इफ शी इज देयर आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। Good afternoon. Good afternoon, madam. Good afternoon, dear students and all the respected jury members, Kamal ji, the zone coordinators from all over India. And I think today we've witnessed a very different event, and I guess for the first time in the history of printing education, we have kind of arranged this initiative. And I think it's a huge responsibility and ownership and initiative taken by Mr. Kamal Chopra and Dr. Anjan Baral ji. And I think it's really impressive that how students could get connected today via this online platform for being competitive in this field of printing. And I think whoever have given, all the participants who have all given this test today, I think you have a great opportunity ahead if you win all the rounds. And it's not just the attraction of the prize, but I think you will also be recognized for your talent in the industry, wherein, as one of the earlier speakers and Mr. Subhash Chandra also had said that industry today needs talented people, and this talent hunt has given this opportunity to the students of our country to be recognized by the industry. So wish you all a very best, and over to you, Kamalji. Thank you for giving me an opportunity. We have with us the coordinator for South, Madam Lakshmi Priya ji. Please, madam, can we listen some word from you? Good afternoon, everybody. It's a privilege to be a part of this Print Olympiad. And as you all know, printing technologists and printing students are not much technology savvy, is what people keep telling. But this is a proof that we are also up to date with the technology.
We have done a print Olympiad totally online. You would have heard of so many competitions, both in schools as well as in the colleges, hackathons, wherein you cannot see an option for printing technology at all. You will have computer science, mechanical, and all other branches, but no printing technology. But I think we have made a mark today, having this print Olympiad doing online. So all the kudos goes to Kamalji and his team. And I'm proud that I'm part of Kamalji's team. So dear printing students, you must be proud that you're all printers. You must also be spreading the word and telling people that you are technology savvy. Ask any of your colleagues or students who are into engineering, have they done any online test like this, an Olympiad like this on a nationwide? No, you are the first. So be proud, best wishes, and do well in future. Proud to be a printer. Thank you, Kamalji. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. She is looking after the south. And similarly, for east, we have with us Mr. Devanath. Shankya Devanath is going at the east. So I will invite the coordinator east, Mr. Shankya Devanath, please, sir. Yes, first of all, my hearty congratulations to Professor Chopra, Professor Boral, and all the coordinators, Professor Vijendra Kaushik ji, to have coordinated such a wonderful and successful first event of the North Zone Print Olympiad. I think as Madam Lakshmi Priya rightly pointed out, the one basic problem that we as students and faculty members of printing technology faces is that when we go for various training and various Olympiads, various competition, there is a whole lot of opportunity for mechanical, computer, electrical, and all such other subjects, but very few opportunities for printing technology and printing engineering subjects, which this platform has provided, has been perhaps the only and the first pioneer under the guidance of Professor Chopra, who has kindly accepted and taken this challenge and has entrusted us with coordinating and conducting this entire event. I think this has been a grand success for the first installment of the North Zone Print Olympiad, and I really look forward to visiting the other region Olympiad also, and also hope cooperation in the East Zone Print Olympiad that we are going to conduct. Thank you all, and definitely thanks a lot to all the participants who have come and joined in large numbers and made this event a great success. Thank you. Thank you, Devanath. And we have with us Mr. Hemant Kumar Mishra. Hemant, he is the Director Printing, Government of India. So I will invite him to say a few words. Mr. Hemant Kumar Mishra ji. I am speechless, sir. I am so happy to be here. I am speechless. I am hearing all talents here, including juries, and Sankyas are delivered nicely. And the initiative taken by you, sir, personally. So I'll definitely try to dedicate myself with these things, because it is an academic hub. Very rare opportunity to get in the Eastern Zone in this aspect. So it's a pleasure and proud. And I will try my best, sir, to give my maximum that is possible in each and every aspect, whatever, sir, you need. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Hemant Mishra, sir, he will be judging our eastern side also. He is one of the judge for east. So, Brijendra ji, are you ready with the results? I don't know. Yes, sir. Yes, sir, list has been sent already to our judges, and a huge participation. Around 28 students have responded and submitted results from diploma, and 54 from the BTech. So total 82 people have submitted the responses, and it's a very good number, I think. And out of that, out of 82, we have to collect top 30 students. We have, I think 82 is very good number. और अच्छा, इससे पहले हम आगे जाए, आप में से कोई बच्चा कुछ बात करना चाह रहा है? I will, मेरे को बड़ा ही खुशी होगी अगर कोई बच्चा कोई बात करे. Any person can raise their hand and unmute yourself. I will unmute otherwise. कोई बच्चा कुछ कहना चाहे? हाँ, बोलिए. ये अपरजीत है, मैं unmute कर रहा हूँ. अपरजीत बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? It's an indeed pleasure to meet you all, sir, all the dignitaries and all. Thank you so much, Kamal Chopra, sir. Well, thank you so much, sir. Even though I'm in my 4th year, this is my first time having this. I'm participating in Print Olympiad. काफी कम time था, sir, 50 question के लिए, but still we made it. हमने किया, sir, maximum अपने try दिया है. जहाँ पे तुक्का देना था तुक्का ही डाल दिया, जहाँ पे आंसर आता था वहाँ पे आंसर डाल दिया.
Thank you so much, sir. You've been in contact with us. I am from Central University of Haryana. I am just introducing myself. I am Aprajit from Central University of Haryana. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. ये मिस्टर सागर है, ये बात कुछ बोलना चाह रहे हैं. सागर बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए. Today I'm very glad to attend this exam. Today I'm very glad to attend this exam. I feel there is lots of progress in this printing industry, and there is a lot of knowledge that cannot be completed only in degree. It may be a full-time knowledge for any student in printing industry. And thank you, sir, for this wonderful exam. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, सागर. और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहे? Any other? और कोई स्टूडेंट? हाँ ये और कोई स्टूडेंट बोलिए. ये हाँ मेरे पास आया अवधेश. अवधेश जी बोलिए. मिस्टर अवधेश. हाँ बोलिए बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. बहुत अच्छा लगा ये प्रिंट ओलंपियाड, और मेरे कॉलेज से भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं इसमें. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. चलो बढ़िया है. हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक. जीतना है ना जीतना तो बात ही बात है, लेकिन पार्टनरशिप तो करनी ही चाहिए. सर एक क्वेश्चन था सर, डिप्लोमा के बाद डिग्री करना जरूरी होता है? नहीं ऐसे, मैं जब इलाहाबाद आपके जो मीटिंग इलाहाबाद में हुई तभी कहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है आगे पढ़ना. देखो देयर आर टू फील्ड्स. अगर आपने किस प्रोफेशन में जाना, अगर आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आपको पीएचडी तक जाना पड़ेगा. अगर टीचिंग में नहीं जाना तो डिप्लोमा के बाद भी नौकरियां मिल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आजकल थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि ड्यू टू कोविड काफी ले ऑफ हो रहा है, लेकिन फिर भी वी हैव द बेटर चांसेस. ये कोई जरूरी नहीं है, डिग्री आपके ऊपर है. वैसे तो जितना पढ़ो अच्छा होता है. आप पीएचडी करो, फॉरेन जाओ पढ़ने तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये आपके ऊपर है. अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ट्राई योर जॉब्स. ध्रुव है हमारे पास. मिस्टर ध्रुव. ध्रुव वांट टू से समथिंग. बोलिए ध्रुव जी. Good afternoon, sir. First of all, that was so great to meet you all, sir. And thank you so much for this opportunity you gave us, sir. And I do have one question. Sure, that the thing is, I want to be a graphic designer. So do I need? I do have some basic knowledge of this subject, but I don't know where to start the practical work. Actually, we organized a webinar in which we invited some current entrepreneurs. Believe me, there was one person, one student like you. He was doing online designing and earning crores of rupees, not thousands, but crores of rupees. So there is opportunity. There are many people who are doing online designing. Is a good, very big job. If Yeah, I do love to. I do love to continue this as a profession as well. So if you are a good at graphic, better you do it online. Start it online. You will find the way. आप तो खुद रास्ता ढूंढ लो यार, हमें बताने की क्या जरूरत है. You will I find thought you would suggest me some. Definitely. Why not? I will tell you the name and address of the person. You can talk how he had done. And Thank you so much for that information. you know, so Yeah. जो हमारे पास अरहंत है, अरहंत wants to talk. अरहंत बोलिए. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir, for giving this golden opportunity. We are very grateful for participating in this competition. Sir, I have one question. Sure. Sir, I want to do a business in printing. I want to open a printing press. So how I open and I can study? मतलब सर मेरे को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बेटे बड़ा सिंपल है. आपने करना क्या है? अगर आपने प्रेस खोलनी है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. डिप्लोमा के बाद ही बहुत है अगर प्रेस खोलनी है. Yes, sir. लेकिन प्रेस ऐसे नहीं खुलती. प्रेस खोलने के देयर आर टू वेज. एक तो है कि डैडी का बहुत सा पैसा लो और बहुत बड़ी प्रेस लगा दो. एक तो रास्ता ये है, डैडी के पैसे पर ऐश करो. उसमें काम चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क डैडी का हो गया ना, आपका रिस्क तो है नहीं. वो तो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर है. नहीं, मैं दोनों रास्ते बता रहा हूँ. दूसरा रास्ता भी है. प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि 10,000 रुपए में शुरू हो जाता है. आप छोटे से पर शुरू करो, धीरे धीरे आगे चले जाओ. आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, स्लोली है. आप देखो स्क्रीन प्रिंटिंग कितने में शुरू होती है आपको बताइए.
इफ यू हैव द आइडियाज टू प्रिंट यू कैन स्टार्ट प्रिंटिंग। आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। देयर आर टू वेज। तो प्रेस खोलना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। यही एक प्रोफेशन, तभी तो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो आप 10,000 रुपए में अपना काम शुरू कर सकते हो, 10 से भी कम में कर सकते हो। यस सर। तो ये आपके ऊपर है। अगर पढ़ना चाहो, पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना गलत बात नहीं है, मैं बार बार कहूंगा। लेकिन अगर आपका आइडिया प्रेस खोलने का, तो आगे पढ़ने से वो तो 3 साल लगाने से बेटर है कि प्रेस में 3 साल लगा दो। उससे बेटर पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ज्वाइन सम प्रेस, किसी प्रेस में जाओ, चाहे वहां फ्री काम करो, आपको पता लगेगा कि प्रेस चलती कैसे है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक्सपीरियंस हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने शुरू कर दो, छोटी छोटी एक मशीन जो भी आपके जिस शहर में लगानी है। प्रेस डिपेंड करती है आपने कहाँ लगानी है, आपका सिटी कौन सा, आपके कस्टमर कैसे है, उस टाइप का इक्विपमेंट आपको चाहिए। तो आप अपने एरिया में देखते हो जिस चीज की डिमांड है उस टाइप का इक्विपमेंट लेके प्रेस लगा देते हो। अभी कई ऐसे वंडर्स हैं प्रेस में आ गए, अगर आप गूगल पर भी जाओगे सर्च करोगे तो वैसा अगर आपके सिटी में नहीं है तो लगाओ, आपको पैसे मिलेंगे। तो अभी दिव्यांश है हमारे पास। दिव्यांश, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल सर, कि हमारे जो सीनियर्स है वो हमें आज हमें इतना सब कुछ बता रहे हैं, और आपने इतना बड़ा प्रिंट ओलंपियाड जो शुरू किया, होस्ट किया है, तो उसके लिए थैंक यू सर। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि मेरा जो प्रिंटिंग मशीन है, कोई भी मशीन है उसमें इंटरेस्ट है सर, तो कौन सी कंपनी मतलब मशीन्स बनाती है, नई क्रिएट कर रही है, या फिर ऐसा कोई? बेटे मशीन तो देयर आर प्लेंटी ऑफ मशीन इन प्रिंटिंग। आप बात मेरे को लग रहा है कि आप बात कर रहे हो प्रिंटिंग मशीन की। यस सर। हाँ, तो प्रिंटिंग मशीन अब तो ऑफसेट मेजरली चला, आप ऑफसेट की बात कर रहे हो? यस सर। तो बेटे एवरी टाइप मशीन की सर, मशीन हर एक टाइप की मशीन की मुझे इंटरेस्ट है प्रिंटिंग की। जो नहीं, आप मशीन बनाना चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो? एवरीथिंग सर, जब मशीन बनाएंगे तो उसको चलानी भी आनी चाहिए, वो तो बेसिक ही नहीं, आपने अभी तो सीखना है ना बेटे, अभी तो आपने सीखना है। अगर आप मशीन बनाना सीखना चाहते हो तो हमारे पास ऑप्शन वो भी है। आपको यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद देन वी कैन सेंड यू सम प्लेस, यहाँ पर आप मशीन बनाना सीख सकते हो। किसी भी फैक्ट्री में जहाँ मशीनें बन रही हैं, यू हैव टू डू द अप्रेंटिसशिप देयर, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द मशीन्स। चलाना तो अलग बात, दोनों चीजें अलग अलग है। अगर मशीन बनाना है अलग बात है, मशीन परचेज करना है दूसरी बात है, मशीन चलाना एक तीसरी बात है। मशीन चलाने की जहां तक रही, तो आपको जहां भी नौकरी करनी है वहां पर जैसी मशीन मिलेगी वही चलानी पड़ेगी ना। तो आपको ढूंढनी पड़ेगी किस तरह का जॉब आप कर सकते हो और क्या आपने करना है। बनाने की है सर, मशीन बनाने की, असेंबल करने बेटे बड़ा आसान है। आप ऐसे करो, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, कांटेक्ट मी, आई विल रेफर टू सम मशीन मैन्युफैक्चरर। वहां जाके अपना 1-2 साल 3 साल लगाओ, बनाना आ जाएगा। ठीक है सर। तो फिर वो सर आजकल कुछ कंप्यूटराइज्ड भी आते हैं कि कंप्यूटर से चलने वाली है, तो वो भी आप जिधर जाना चाहोगे उधर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप कंप्यूटराइज्ड मशीन सीखना चाहो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज वो बंदा नहीं देगा। जैसे हमारे यहाँ अच्छे कंप्यूटराइज्ड मशीनें बनाने वाले बहुत अच्छे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं। अभी हमारे कोयम्बटूर में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो बहुत अच्छी कंप्यूटराइज्ड मशीनें बना रहा है, बट वो आपको कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग नहीं देगा। उतनी बेसिक नॉलेज लेके आप वहां चले जाओ, देन आप अपना कोर्स पूरा करो, थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज लो, देन वी कैन रेफर यू टू दैट, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू सर। जी सॉरी, मैं दूसरी बार ले रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चन हैं। सर कैन वी गेट एटलीस्ट अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हु हैव एटलीस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस? Second, sir, can I do an integrated PhD in Rochester or Michigan State if I'm going to foreign? And the third is, sir, are you still funding for the foreign this thing and all? Are you giving any scholarships and all? Thank you, sir. तो आपके जो 3 क्वेश्चन है एक एक करके लेते हैं। We are not providing any participation certificates. हम सर्टिफिकेट सिर्फ फाइनलिस्ट को देंगे, जो फाइनल आएगा। 5 फाइनलिस्ट को सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक विनर होगा, उसको विनर का मिलेगा। अदर पार्टिसिपेंट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट एज पर आवर सिस्टम। Regarding PhD, I think Dr. Bral can tell you better because it's an academic question. I may not be able to answer that correctly. Yeah, the third one, we still fund the person. ऐसी कोई बात नहीं है हमारा। We provide the scholarship on the basis of merit and your financial background. आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और आपका मेरिट स्कोर क्या है, उसके बेस पर वो 100% फंडिंग नहीं है, सम पार्ट वी फंड। ये हमारा एक निपा एजुकेशन ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से हम फंड करते हैं जो भी बच्चा प्रिंटिंग में कुछ आगे पढ़ना चाहे।
उसके अंदर एक और है, अगर आप रिसर्च करके कुछ नई मशीन बनाना चाहो या कुछ नया इक्विपमेंट, नया फार्मूला बनाना चाहो, देन वी फंड 100%, और उसका बहुत बड़ा हम प्राइज भी देते हैं। इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग न्यू which is not there in India or is being imported, वो भी एक उसके अंदर ही है। तो कोई भी अगर स्टूडेंट, दैट इज रिसर्च वर्क, उसके अंदर जो आपके स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं वो भी काम कर सकते हैं। ओके सर, या थैंक यू। यस, आशीष, आशीष बोलिए। आशीष जी, मिस्टर आशीष, हाँ बोलिए। हम लोगों को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स थे उन्हें लास्ट प्रिंट ओलंपियाड का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो वो आप डॉक्टर बराल से कांटेक्ट कर लो। कुछ सर्टिफिकेट पिछली बार प्रोवाइड किया था जो चंडीगढ़ कंपटीशन हुआ था, अब उसकी बात करो। हाँ तो डॉक्टर बराल उनके पास है, डॉक्टर बराल के पास है सर्टिफिकेट। ओके सर, थैंक यू सर। ये संजीत, संजीत। Yes, sir. First of all, thank you for this give us opportunity. मेरा सवाल ये है कि जैसे इस कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे पास आउट हो गए हैं, तो उसके लिए मतलब नया मतलब कैसे होगा? जैसे कोई काम करना चाहता है, उसके लिए कंपनी आ नहीं रही है प्लेसमेंट के लिए, तो सर उस पे आप कुछ मतलब कहना चाहते हैं? संजय जी ऐसे है कि अभी ये क्या हुआ, कोविड में काफी नौकरियां चली गई। जैसे न्यूज़पेपर के एडिशन बंद हो गए, कम हो गए या बंद हो गए, उन लोगों ने ले ऑफ कर दिया। बहुत से बच्चे ले ऑफ हुए हैं, आपके यहाँ के भी हुए होंगे, कलकत्ता के भी हुए। तो प्रेजेंट सिचुएशन में तो सारा इंडिया ही डिस्टर्ब है, इंडिया का वर्ल्ड ही डिस्टर्ब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है। प्रिंटिंग के अंदर आप नौकरी की बात छोड़ के कुछ और भी तो कर सकते हो ना। हमें सिर्फ नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे ऑप्शन खुलेंगे। जैसे आज हमने ऑनलाइन, ये आप लोगों ने अभी यस सर, बात तो आपकी सही है, बट सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, बैकग्राउंड बहुत मतलब बैड है, तो उसको तो फर्स्ट सबसे पहले बात ये है कि उसको जॉब चाहिए। तो सर वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं अभी पूसा से बोल रहा हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी कंपनी आई भी थी और बच्चे को ले भी गई 1-2 कंपनी, बट पता नहीं वो ज्वाइन करवाई या नहीं करवाई। लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कि उसको जॉब करनी है, इसके बाद वो आगे मतलब जो भी मतलब आगे स्टेप लेना चाहे वो करे। सर उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बेटे बात पता क्या है, अभी देखो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप सर्विस ढूंढ रहे हो, अगर आप सर्विस आप अकेले नहीं ढूंढ रहे। इंडिया के अंदर 37 प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट हैं, पूसा एक नहीं है, 37 है। 37 में लगभग 4000 प्रिंटिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा सारा साल निकलते हैं, उस 4000 ढूंढ रहे हैं। उनमें से मिलेगी किसको? जो उनमें से आज जैसे हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो जो प्राइज मनी टॉप को मिलेगा ना, तो नौकरी पहले टॉप वालों को ही मिलेगी। आपकी स्ट्रगल से क्या होगा? फाइनेंस कंडीशन से भी कुछ नहीं होगा। वो तो जो टॉप पर निकल गया, जो अच्छे हैं वो निकल गए, तो उनको मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंटिंग एक ऐसी फील्ड है, हर एक के लिए ऑप्शन है। आपके पास जितना मर्जी कम पैसा, आप 4 स्टूडेंट इकट्ठे होकर 1000 रुपए डाल के प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हो। मार्केट में ये भी कर सकते हो, काम मार्केट में लेके 1 प्लस से छुपा के दे दो। देखो बात सिर्फ है कि अर्निंग के लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी है। बाकी जो नौकरियों में एक प्रॉब्लम है, अभी जैसे गवर्नमेंट ड्रेसें बंद हो रही है, अखबार कम हो रहे हैं, तो नौकरियों की वो होम खत्म हो रही है। लेकिन नई फील्ड खुल रही है, जैसे आज हमने ऑनलाइन देखा। आप कुछ ऐसी चीजें सीखो ऑनलाइन सिस्टम से, या प्रिंटिंग प्रेस में क्या इंप्रूव कर सकते हो। आप किसी भी प्रेस में जाओगे, उसको कहोगे मैं ये इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, आपको हाथों ले लेगा। यस सर, थैंक यू सर। बट एक क्वेश्चन और है सर मेरा। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सर। क्वेश्चन ये है कि आजकल क्या होता है सर, कॉलेजेस में जो है वर्कशॉप सही से चलते ही नहीं है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि आप लोग जैसे इस तरह के करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो उस तरह से आप वर्क प्लेस दे कॉलेज को प्रोवाइड करवाए, ताकि अच्छी टेक्निकल वर्क मतलब स्टूडेंट को मिल सके, टेक्निकल स्किल मिल सके। क्योंकि सर आजकल क्या होता है ना, कॉलेजेस में पढ़ाई तो होती है, थ्योरेटिकल होती है, बट लेकिन बच्चे जो है ना अपना जो स्किल्ड होता है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो सर उसके लिए आप लोग का क्या मतलब कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो इंस्टीट्यूट? Sir, I would like to interrupt for a second. Everything is ready, sir, and it is last question. And judges, I am in touch with judges, and they collectively have finalized the result. And results are very interesting, and I think student would be quite willing to know. So please answer this question, and after that we would announce the result. Our judges will announce the result. Okay, thank you, Vijender, thank you very much. संजीत, जो आप जो बात कर रहे थे ना,
इसके अंदर देखो आप फिर देखो इसके अंदर फिर अपने दो सिस्टम आ जाते हैं। अभी हाँ आप प्रिंट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये भी तो वही है ना, नॉलेज शेयरिंग, हम नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं ना। आप अगर आओगे कुछ नया सीखोगे। अब आपने क्वेश्चन में देखा होगा देयर आर सर्टेन जनरल क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में नहीं वैसे अवेलेबल है। तो जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए एसोसिएशन लेवल पर देयर आर टू वेज। एक तो हम अपने आप कर रहे हैं, एक अगर कॉलेज कोई भी कॉलेज आज सपोज करो आपका कॉलेज भी कहता है हमें कि आके हमारे साथ हेल्प करो, वी आर रेडी। ये ऑप्शन दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं हो सकती। आज ये जो हमारा आज का प्रिंट ओलंपियाड है ये होस्ट कर रहा है, अगर पुस्तक आता वो होस्ट कर सकता था। तो ये आपकी मर्जी है, आप हमें ऑप्शन भेजो कि हम तो तैयार हैं हेल्प करने के लिए। तो उसके लिए दोनों साइड का प्लेटफॉर्म चाहिए। अपनी साइड से हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम वेबिनार करते हैं रेगुलर, उसके अंदर नई बातें ही होती हैं। वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी हमारी एक लिंक पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आई थिंक मेरे पास 40 अलग अलग टॉपिक पर है, आप सुनो, वो नई नॉलेज है, वो आपके कॉलेज की नॉलेज नहीं है। वो आज कल प्रिंटर क्या कर रहा है और कल क्या करेंगे, आने वाले टाइम में कैसा होगा, तो वो नॉलेज इज ऑलरेडी अवेलेबल। डेफिनेटली वी आर रेडी टू डू कोलैबोरेशन विद एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज। हमें खुशी होती है अगर हमें बुलाएं, यार बच्चों को ये बताओ, वी विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ये दोनों तरफ से प्लेटफॉर्म चलेगा, एक साइड मैं अपनी मर्जी से नहीं आ सकता ना आपके कॉलेज। यस सर, थैंक यू सर। इससे पहले कि हम रिजल्ट दिखाएं तो मेरा ये आइडिया कि हम जजेस से पूछेंगे उनको कंटेस्ट कैसा लगा। हाँ जी महेंद्र बताइए आपका इनपुट कैसा था बच्चों का एज ए ग्रुप? बच्चों का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा है, बट इट कुड बी डेफिनेटली बेटर। आई डोंट नो कि उनको कितना टाइम मिला है, क्या है प्रेपरेशन के लिए। एनीवे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और मेरे विचार में अगर ये मेहनत करें, इनको और मेहनत करने की ज़रूरत तो है ही, और ये मेहनत करेंगे तो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो बच्चे नेशनल ओलंपियाड में जाएंगे उनके लिए मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस है, मैं उनको विश करता हूँ कि दे शुड कम एट द टॉप इन दैट। मिस्टर किसना? हाँ हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। हमारा आइडिया के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था? आप भी इलाहाबाद से पढ़े हुए, आपने भी डिप्लोमा किया है, तो ये बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी? बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं आया है। नॉर्दर्न रीजन से जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबके बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और सबने जीता है, सब मेरिट लिस्ट में आए हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो आपका गाइडेंस हो, बराल साहब का गाइडेंस हो या और किसी का गाइडेंस, डॉक्टर मेंद्र साहब का गाइडेंस हो, लेकिन सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ऑब्वियसली गुंजाइश हमेशा रहती है आगे बढ़ने की इच्छा सब में होती है और गुंजाइश भी रहती है। तो अवश्य जैसे मेंद्र साहब ने कहा बच्चे और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकेंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया है। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कालिंदी कॉलेज हो, चाहे वो दुर्जमेश्वर हो, चाहे वो पुलिसपुर क्षेत्र हो, हर जगह के बच्चों ने बहुत बेहतरीन, बहुत हमारा पहला प्रयास और जैसे सबने कहा सबका सम्मिलित प्रयास बहुत अच्छी तरह से आया है। और कमल जी स्पेशल थैंक्स टू यू एंड congratulations to you for your really marvelous efforts to bring the fraternity together again. And I totally support the view of Mr. Subhash ji that it's only because of you that we all are united. And I must congratulate this in advance to the new president of the AIFMG as declared by Subhash Bhai Sahab. So, but you know, we are still to see many things, many things, many developments, many go-aheads in the printing fraternity of our country, and not in the country of the outside also. मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ उनके भविष्य के लिए, उनके आगे काम करने के लिए, उनकी सारी समस्याओं का निदान के लिए और अवश्य पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए। मैं आप सबका पुनः बहुत राजेंद्र जी, अब रिजल्ट हुई, टेलिंग द रिजल्ट टू अस। B.D. Mendiratta sir, he has summarized the report, and other will also assist afterwards. So B.D. Mendiratta sir is announcing the results. So I will give the names of 5 students, first 5 students. Number 1 is Rajanish. He has got 29 marks. He is from NR Institute of Printing Technology, Allahabad. Number 2 is Raghuveer.
He has got 28 marks. He is from GJU Science and Technology. Then Utanshu, he has also got 28, but he has given 3 minutes later his result. So Central University Hisar. And then Himanshu Chaube, he also submitted 5 minutes after the Himanshu. And he is also from the Central University Hisar. And the fifth one is Chaudhary Sanjeet, 27 marks. He is from Pusa Institute of Technology. फिर इसमें मैं वैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बोलिए। Very good, sir. हाँ, मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए पहला जो है ये रजनीश जो है, then number 2 is Himanshu, number 3 is Utanshu, number 4 is Raghuveer, then Chaudhary, then is male Vishant Saxena, then Susharik, then Abhinav Sharma, then Janisha, then Lalit, then Vatsanshi, then Kritish Chandra, then Shrikantha, then Manish Kaushik, then Raj Sharma, then Thakur Mohit, then Vijay, then Pramod, then Om Institute का है, इसका खाली वो लिखा है OM, then next Om Prakash है, then Manmohan, then Vishwanath, then Satyam, then Gagandeep, then V. Pralha, then Madhur Bajaj. This is the last. These are the 25 candidates. मैं दोबारा बोल दूं? हाँ नहीं बोल दीजिए, that is better. हाँ, पहला है रजनीश वर्मा, number 2 Himanshu Chaube, then Utanshu, Raghuveer, then Sanjeet Chaudhary, then Vishal Saxena, then Suhash Datta, then Abhinav Sharma, then Neha Jha, then Lalit, then Ashrish Vats, then Kirti Handa, G. Shrikant, then Manish Kaushik, then Tushar Sharma, then Mohit Kumar Singh, then Vijay Bharati, then Pramod Kumar Sharma, then Om Prakash, then Manohar Reddy, then Vishwanath B, then Satyam Singh, Gagandeep Pandey, then V. Prahlad, then Madhur Bajaj. Yeah, you can see the screen on screen also. हाँ. Screen is visible to all, I think so. हाँ, screen से ही बता रहा हूँ मैं. Yeah. These are the students who have selected 25 students. Bajendra ji 25 है ना? Yeah, 25 students, sir. So these are the 25 students which are selected for this. You can every student can see. Each student can participate in round 2. Round 2 में इनमें से 5 स्टूडेंट चुने जाएंगे. तो आपको राउंड 2 का लिंक भेजा जाएगा, जैसे आप भेजा था ईमेल के ऊपर, सेम वे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. उसी तरह सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड. सो अगेन देयर विल बी ए क्वेश्चन पेपर, रिटन क्वेश्चन पेपर, दैट विल बी सेम फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री. अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक ही फाइल बनेगी. तो दीज आर द स्टूडेंट्स, प्लीज आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर. बजिंदर एक बार पढ़ दो सारे दोबारा. Yeah. I'm again ready. I have list in the hard copy. नीचे से पढ़ना, आप
आपने फाइल उल्टी बनाई, नीचे से पढ़ना, फर्स्ट से पढ़ना जो पहला है। Exactly, sir. Exactly. And the first one students, that is the Rajneesh Verma, that is from NRIPT Prayagraj, Allahabad, and ID number is 091. Good. And the second one, that is the Ragveer Kalkere from GJU SMT Hisar, ID number 146. The third one is Tanshu, ID number 158. Fourth one is Himanshu Chobe from Central University, ID number 062. And after that ID number 053. Vishal Saxena, ID number 144. Suhas Datta, ID number 008. Abhinav Sharma, ID number 078. Neha Jha, ID number 145. Lalit, ID number 160. Ashish Vats, ID number 157. Siti Handa, ID number 161. G Srikant, ID number 005. Manish Kaushik, ID number 121. Tushar Sharma 098. Mohit Kumar Singh 92. Vijay Bharti 51. Pramod Kumar Sharma, ID number 006. Om Prakash, ID number 018. Kumar Reddy, ID number 13. Vishwanath B, ID number 154. Satyam Singh, ID number 159. Gagan Deep Pandey, ID number 125. V Plad, ID number 4. And the last one who scored 22 out of 50, that is Madhur Bajaj, having ID number 35. So a close competition was there, and as Sinha sir told that I think most of institutes are included in the result. Even I am watching the Guru Jambheswar University, Kurukshetra University, Central, even Kalindi College, Pusa, NRIPT, and I can definitely say after watching the result that each institute is doing well, and no one is behind or no one is too much forward from each other. Students are just making hard work. इस बच्चे के टॉप स्कोरिंग आया रजनीश वर्मा। रजनीश वर्मा क्या है, ये नाम है ना? Yeah, he is from NRIPT sir. है यहाँ पर रजनीश है? रजनीश Yes sir. प्लीज बोलिए कुछ। Yes sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून, बोलिए आइए स्क्रीन पर बोलिए। Yes sir, क्या बोले सर? कैसा लगा? हेलो। हाँ कैसा सर लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से ईयर में पढ़ रहे हो? सर सेकेंड ईयर में है सर अभी। गुड। तो देखो ना, सिन्हा साहब भी खुश हो रहे हैं, मेहंदी रेता भी खुश हो रहे हैं, अनुभव भी खुश हो रहा है, सारे NRIPT के। Sir, I am also happy. Sir, I am also happy from GJU. Out of 25, 10 students, and the maximum. Old is gold, sir. Wonderful, sir. Wonderful. हाँ जी, बोलिए। Sir, old is gold always. Old is always gold, sir. हाँ रजनीश, आप बोल रहे थे, बोलिए। रजनीश जी सर। बोलिए। सर तो हमको तो पता नहीं था कि मतलब हम फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन मेहनत तो सर करनी पड़ती है हर चीज के लिए। सर मेहनत की मैंने दिन रात, और सर अभी तक यहाँ पहुंचे मैं। बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत मुबारक है, और डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल वन। यस। सो बेस्ट ऑफ लक। एनी अदर स्टूडेंट वांट्स टू से, कोई और बच्चा, ये है संजीत, कुछ बात करना चाह रहे हैं, हम अब क्लोज करेंगे। संजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए मिस्टर संजीत। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ बोलिए। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि मैं टॉप 5 में आया, मैं अपने पुसा से हूँ, तो ये अच्छा लगा क्योंकि मैं डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ और इस बार ही मैं पास आउट हुआ हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मतलब 3 साल का जो हमारा वर्क था, जो मैंने पढ़ाई की, उससे मुझे क्वेश्चन आया समझ में, उसको अटेम्प्ट किया, और सारे क्वेश्चन तो इजी थे ही, अच्छे थे। अब आगे देखते हैं सर क्या होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? तो आई विल लाइक टू थैंक यू ऑल। तो वी हैव विद अस आवर, जैसे मैंने बताया था, ये हमारे एक नॉर्थ के लीडर हम समझते हैं, हमने हेड समझते हैं, हमारे नॉर्थ के हेड हैं। तो वैसे ही हैज बीन द वाइस, ही रिमेन द
President of All India Federation of Master Printers also. Suhaji, आपका vote thank you. Suhaji, please. Thank you, Kamal ji. First of all, ये जो आपने प्रिंट ओलंपिया जो नॉर्थ जोन का ऑर्गेनाइज किया है, इससे काफी कुछ मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है। इसके अंदर मैंने देखा 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और सब स्टूडेंट्स को मैंने सुना। तो ये आने वाले प्रिंटिंग इंडस्ट्री की आपने क्रीम चुनी है, और ये कितनी आपको, आपकी जो टीम है, विजेंद्र कौशिक है, आप है, बराल साहब है, ये कितनी आपको दुआएं दे रहे होंगे। ये इस टाइम ऐसे निकले हैं, ये जब बच्चा पढ़ के निकलता है ना, मैं स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ सुनो, तो ये बच्चा पढ़ के निकलता है, वो बड़ा विवरिंग माइंड होता है उसको मालूम नहीं होता मेरे को बिजनेस करना है, सर्विस करना है, कहाँ मेरा, उसका दिमाग जरा हिला होता है, विवरिंग माइंड होता है। तो इनको तो थोड़ा तो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इनको एकदम नौकरी पे जाने से पहले, बिजनेस से जाने से पहले, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जैसे आप आदमी वकालत पढ़ के करता है, नौकरी भी कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बिजनेस कर सकता है, नौकरी भी करता है। डॉक्टर है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर है, जॉब भी कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो प्रिंटिंग का ट्रेड ऐसा है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कमल जी ने जैसा भी बताया, थोड़े पैसे से भी काम शुरू हो सकता है, ज्यादा से भी हो सकता है। जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने थोड़े से पैसे, आज इनकी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी है, देखने लायक है, जो इतना क्वालिटी वर्क प्रिंटिंग करते हैं, एक्सीलेंट जॉब करते हैं। देखे कमल जी, ये हमारी जो इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है, इनको जैसे हम प्रिंटिंग एग्जीबिशन लगाते हैं। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था, मेरे को पीएचडी करनी है, रॉचेस्टर में जाना है, इधर जाना है। हमारी प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो हमारी एग्जीबिशंस लगती है, नोएडा में, नॉर्थ में लगती है, हर जोन वाइज में एग्जीबिशंस होती है। इनको एक सलाह आप हमको देनी चाहिए, प्रिंटिंग एग्जीबिशन जरूर अटेंड करें आप। हमारी भी इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, पैमेक्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनकी पूरा इनको इन्वाइट करें, हमारी एग्जीबिशन देखें, इससे इनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, नोएडा में लगती है, सब लोग बच्चे फॉरेन नहीं जा पाते, तो इंडिया में जो है एग्जीबिशन लगती है, हमारे जर्नल है, बुक्स हैं, वो जरूर पढ़े, उससे इनकी नॉलेज बढ़ेगी। आज ये विजेंद्र जी, बराल साहब मेरी बात सुन रहे हो, आज आपने ये 110, 20, 100 बच्चे, जो मोर देन 100 बच्चे, ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्रीम है। आज आप, मैं एक बारी डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट है वहां दिल्ली में, वो मैं वहां पे प्रिंसिपल से मिला, तो कहता है जी फाइनल ईयर आने से पहले स्टूडेंट हमारे सब जॉब लग जाती है। इतनी डिमांड है हमारे इस प्रिंटिंग ट्रेड के टेक्नीशियंस की, पढ़े लिखे क्वालिफाइड की बहुत ज्यादा डिमांड है। आज बच्चे बीटेक करते हैं, कोई डिफरेंट ब्रांच में करता है, कोई सिविल में करता है, मैकेनिकल में करता है, कंप्यूटर साइंस में करता है। प्रिंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीटेक तो सब आजकल कर रहे हैं, प्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी बड़ी अच्छी, फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। कमल जी, सबसे बड़ा मैं आपका, हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर में आप हमारे एक ऐसे पास्ट प्रेजेंट भी हैं और आने वाले प्रेजेंट भी हैं। आपसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कोई सीखने की उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। आपकी जितनी नॉलेज है, कौशिक साहब, आप मेरी बात सुने तो ये हमारी इंडिया के लिए प्राउड है। कमल जी हमारे प्रोफेसर नहीं, हमारे प्रिंटिंग गुरु हैं। तो आज यहाँ पर जो बच्चों ने आया, इन्होंने काफी कुछ सीखा। यहाँ पर टॉप क्लास हमारे जजेस हैं, बीडी मेहंदी रत्ता जी, जिन्होंने प्रिंटिंग के अंदर कितनी बुक्स लिखी, कितना उनका वास्ट नॉलेज है। मिस्टर ए.के. सिन्हा, डायरेक्टर, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं ए.के. सिन्हा जी। जितनी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी पोस्ट है, इनसे हम लोगों को भी मिलने जाना पड़ता था, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी निर्माण भवन में। तो इतनी बड़ी पोस्ट के लोग भी यहाँ बैठे हैं। और मिस्टर शिशार्थी थे, और अभी जो नए डायरेक्टर हैं उन्होंने हेमंत कुमार जी को, मिश्रा जी को भी आपने बुलाया। तो ये आज जो ऑनलाइन आपने बच्चों को इनकरेज किया, ऑनलाइन का टाइम है, आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, वेदर बीटेक है, बीएससी, सभी ऑनलाइन का टाइम आ गया। कल प्रधानमंत्री जी भी रोज ऑनलाइन बोलते हैं, मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो इन लड़कों को आज आपने, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आपने ऑनलाइन रहने की बड़ी शिक्षा दी है।
और इनका फोकस खुला है। ये असली जो आप नॉलेज किसी को देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और आप, मेरा ख्याल, मैं पीछे भी जब बताया, मैं आया था इसमें, इस यूनिवर्सिटी में, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी में, बहुत एटमॉस्फेयर यहाँ का बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है कि हमें प्राउड होता है कि इंडिया में हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी भी है। अभी मैंने वाइस चांसलर साहब को सुना, इतनी अच्छी उन्होंने स्पीच दी। हमारे बराल साहब हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रिंटिंग टीचर हैं, वो आपके साथ थे इस ओलंपिया में। विजेंद्र जी हैं और अदर जो एकेडमिक इस संस्था से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, और उन्होंने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छे क्वेश्चन रखे, अपना फ्यूचर, अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है। तो आज सर, आप कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में आप चेकअप करवाने भी जाए ना, तो 1-to-1 बात होती है। आज वही आपने यहाँ करके दिखा, हर स्टूडेंट को मौका दिया। और आज आगे भी आपका आगे जो प्लानिंग है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ तो हो गया, बाकी जोन में भी जो आपकी प्लानिंग है, बड़ी अच्छी प्लानिंग है। और इस फील्ड हमारा बहुत बड़ा फील्ड है प्रिंटिंग का। इतनी इसमें हमारी कॉस्टली मशीनें। मैं स्टूडेंट्स को यही बार बार कहूँगा, बच्चों काइंडली टच विद कमल जी, बराल साहब, आप लोगों के साथ टच रहे। हमारे यहाँ एक पूरी एग्जीबिशंस का कैलेंडर आता है। अभी तो कोविड का मामला है, अभी ये एग्जीबिशन हमारी लगती है तो आपको देखना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूट में ये पॉसिबल नहीं है सारी टाइप की प्रिंटिंग मशीनें हो। आप प्रिंटिंग प्रेस विजिट करें, हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर वन ऑफ द बिगेस्ट फेडरेशन है, इसमें 80 एसोसिएशंस हैं हमारे प्रिंटर्स आर एवरीवेयर। हमारे यहाँ से जो रिकमेंडेशन होके जाएगा, हमारी मैगजीन प्रिंटिंग टाइम निकलती है, सब निकलती है। हम आपको कहीं भी, आप किसी भी जोन से, आप पहले प्रिंटिंग प्रेस देखिए, एग्जीबिशन देखिए, जर्नल पढ़िए। ये बड़ा अच्छा आपने फील्ड चुना है। और आने वाले इसमें सैलरी भी, आजकल पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने पहले ही बताया, इसमें दोनों ऑप्शन है, आप जॉब करें, बिजनेस करें, बहुत अच्छा है। तो सीखने की तो कमल जी साथ हैं। मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर इनकी आयु लंबी करे। पता नहीं इन्होंने कितने स्टूडेंट्स की दुआएं ले ली, कितने प्रेस मालिकों को फौरन घुमा दिया। तो आज हमें प्राउड है कि ये हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर आने वाले फिर प्रेसिडेंट है। हमने इनको रिक्वेस्ट करी, आल तो इनके पास टाइम नहीं है, तो इनके पास इतना नॉलेज है, हमें भी बड़ा कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो आप लोगों ने आज कुछ बहुत कुछ सीखा। हमारे अच्छी प्रिंटिंग का फ्यूचर आज हमारे जितने भी आपसे जुड़े हैं। और इस स्टूडेंट्स, ये कोविड-19 के अंदर जो वेबिनार हुए हैं, बराल साहब ने, कमल जी ने काफी मेहनत करी है इसके ऊपर। हर टॉपिक के ऊपर इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस दी है, उसके आप कमल जी से लेके उसका सिस्टम देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। और आज मैं आपको, जो लोग टॉप आएंगे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, आज जो पार्टिसिपेट किया कल वो फर्स्ट भी आएंगे, सेकंड भी आएंगे। तो ये आपके लिए बड़ा आज के लिए मैं 15 अगस्त से पहले ही आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और आज पार्टिसिपेट करेंगे, कल आपको फर्स्ट भी आएंगे, सेकंड भी आएंगे, और आपकी नॉलेज बढ़ती है। और इन शब्दों के साथ मैं कमल जी का, बराल साहब का, वाइस चांसलर साहब का और इस पूरी यूनिवर्सिटी का मैं धन्यवाद करता हूं। खास तौर से मेहंदी रत्ता जी, सिन्हा साहब और शिशार्थी जी, और इतने बड़े बड़े लोग हमारे जजेस हैं, उन्होंने इतना समय दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आने वाले जो हमारे डिफरेंट जोन में प्रिंट ओलंपिया होंगे, वो इससे भी अच्छे होंगे। और मैं इन शब्दों के साथ कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरी टीम का अगेन धन्यवाद करता हूं, विजेंद्र जी आपका, बराल साहब का, हमारे जो जजेज हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, खास तौर पे अपने स्टूडेंट्स का भी जो उन्होंने पार्टिसिपेट का, उन्हें भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बराल जी आप बोलिए। थैंक यू कमल जी, थैंक यू विजेंद्र, सारे जजेस और स्टूडेंट्स। बहुत ही, इट्स ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट टाइम because I am associated with the last 3. So fourth one is completely different and it is online. Very nice.
And Kamalji, really, this system is excellent, foolproof, nothing to worry because it's a completely transparent one. All the students, they took the participation actively, and I'm happy there is a representation from all the institutes in North. So this is a very good sign that the people from different colleges are here. So out of these 25, 5 top will be selected 21st. So you have another 1 week to just stand up. Now the competition will be much tougher because there is no differentiation between diploma and degree. There will be only and only one question set. And this will be a tougher one, but all the best. Once again, Kamalji, and to all the judges, Sinha Sahab, Mahendra Sahab, शिक्षार्थी साहब, बहुत बढ़िया रहा completely. और सबसे हमारा जो आशीर्वाद हमारा जो मिल गया हमारा एक्स प्रेसिडेंट साहब से, वेरी नाइस, सर ने बहुत बढ़िया सा दिए. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि दिस एडिशन इज सर्टेनली द बेस्ट. अगर हम पिछले 3 एडिशन देखेंगे, ये सबसे अच्छा है, सिस्टमेटिक है, ट्रांसपेरेंट है, और ऑल द इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड को गए. सो आई थिंक दिस इज ए वेरी, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही अच्छा रहा है. कमल जी, सारे क्रेडिट आपको. विजेंद्र ने बहुत मेहनत किया है, बैक एंड में बहुत सारे उन्होंने जो है दिए हैं. सुभाष चंद्र जी तो हमारा गोल्ड है, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, हर चीज को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. दिस इज ए वेरी गुड साइन. वो हर चीज में अच्छा ही दिखते हैं सर. जब भी आप उनको बोलने के लिए बोलते हैं, सो ऑलवेज वो खुश होते हैं, और वो खुशी जो है उनका मुंह से, और हमें और इंस्पिरेशन देता है कि और आगे काम करने के लिए. कमल जी, हमारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू. ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. एनीथिंग, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. तैयारी करो सेकंड राउंड की. 22nd वी हैव द सेकंड राउंड, 22nd. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय.